एनएसडी वाज मतलब एनएसडी बहुत एक्साइटिंग था। किसी भी एक्टर के लिए वो मक्का है एक्टिंग का, थिएटर का। 6th में मैं पंडित बना था, देन 7th में मैं रानी बना था, क्वीन बना था, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल बॉयज स्कूल था, तो लड़की के रोल हम ही करते थे। माई वाइफ इज एन एक्टर, आयशा रजा। माई मदर इन लॉ इज एन एक्टर, सलीमा रजा। हाँ, मैं एक्टर। Good evening to one and all present here. I'm Nandini Gaur, the arts captain and director of Kafila, and with me I have Shantav Garg, the other arts captain and director for Kafila. Today we are happy to share with you that we have with us none other than Mr. Kumud Mishra. Mr. Kumud Mishra is a well-known name in the arena of Indian theatre and film, celebrated on account of his versatile acting talent. Having grown up enjoying theatre in school and college, he joined Prabhat Ganguly's The Little Ballet Theatre in Bhopal, on behalf of which he participated in the Festival of India in USSR in 1989. Soon after, he was accepted as a student of diploma course in acting at the National School of Drama, Delhi in 1990-91. Consequently, he shifted to Mumbai in 1994. Here he rose to fame by acting in several plays. Some of the most notable ones are Medha and Zumbish by Ramu Ramanathan and Shakkar Ke Panch Dane by Manav Kaul. His superb performance in Ramu Ramanathan's play Cotton 56, Polyester 84, Manav Kaul's Ilham, and later Abhishek Majumdar's Kaumudi and Muktidham have been much celebrated. Mr. Mishra is of course also well known for his forays in Bollywood films such as Sardari Begum 1971, Patiala House, Rockstar, Filmistan, Ranjana, Airlift, Badlapur, and more recently Article 51, Thappad, and Ram Singh Charlie. We are honored to have Mr. Kumud Mishra in our midst today. While Mr. Mishra's career cannot be summarized with one or two works, we have put together a short film representing some of his works in theatre. वास्तव में सत्य कौमुदी का शास्त्र है। कौमुदी केशव की नहीं, एक तुम्हारे उत्तर केशव की कौमुदी में नहीं, एकलव्य की कौमुदी में प्राप्त होंगे। ये केशव के षड्यंत्र की कौमुदी नहीं, एकलव्य के सत्य की कौमुदी में। मेरी शीशा साफ नहीं है या मेरी उसी आगे पूरी तरह जाती है। हताशा से एक व्यक्ति फैल गया। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। चमत्कार बहुत खूबसूरत था और सभी से करते थे, क्योंकि एक तो उसके पिताजी पुलिस में थे जो तबादले की वजह से हमारे गांव आ गए, और दूसरा पूरे गांव में रघु ही था जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था। हाँ, तो भारती ने किसी विदेशी भगवान को मानता, जिसकी तस्वीर उसने अपने घर में चारों तरफ लगा कर रखा, बार बार कहता था गॉड 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 जय 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 नाम से। Those were indeed really amazing performances. Now we have Ramsha Singh with us,
a budding filmmaker from grade 12, who has explored many different forms of storytelling, including theater and puppetry, in more than one part of the world. We have with us Drupad Varambali. He is a theatre math student of grade 11 who sees his future right out there amongst the bright stage lights. When we reached out to students for the questions they wanted to ask Mr. Mishra, Drupad had more questions than everyone else put together, and then some more. I'm sure we'll enjoy being led by Drupad and Romsha in today's conversation. Over to both of them. Hello everyone, welcome to Fade In. Fade In is a part of Shiv Nada School's arts festival known as Kafila. In Kafila, we celebrate all forms of art. This year's theme is freedom, and today, to celebrate theatre and to learn more about theatre, we've invited a very brilliant performer, and his performances always leave a mark. Please welcome Mr. Kumud Mishra. Hi. Thank you so much for having me here. Thank you. It's a pleasure is ours, sir. Thank you, sir. It's been lovely talking about you and we've been very excited to have you. So, sir, how have you been, sir? How was today? बहुत अच्छा. I went for a walk in the morning. I'm trying to lose weight for a project. So yeah, I've already lost 10 kgs, so 10 more to go. So yeah, it's a difficult thing. Like putting on weight is also difficult, but you never know. Like when you enjoy eating, so आपको पता नहीं चलता, आप खाते जाते हो और 6 महीने बाद पता चलता है कि आपकी सेहत बन चुकी है. फिर 6 महीने लगते हैं उसको कम करने में. So अभी इस प्रोसेस में हूँ मैं. सर, आपका लॉकडाउन कैसे था? I know starting में everybody was very excited, सबने बहुत झाड़ू पोछा करा, eventually थोड़े लोग थक गए, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, लगभग वैसा ही हुआ. असल में शुरू में बहुत एक्साइटमेंट था. शुरू में हमको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हम लोग बहुत सारी फिल्में देखेंगे जो हमको मौका नहीं मिलता है और बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे. एंड घर के काम को लेके बहुत एक्साइटमेंट था बिकॉज जाहिर कोई था नहीं घर में, तो आपको करना था. तो मेरे डिपार्टमेंट में शुरू में आया था बर्तन मांजना, जो मुझे पसंद है, झाड़ू पोछा करना जो मुझे बहुत पसंद है, और कपड़े प्रेस करना. तो धीरे धीरे कुछ काम छूटते गए और फाइनली कपड़े रह गए. तो कई मतलब ऑल्टरनेट डेज या उसके 3 दिन में मुझे 40 कपड़े प्रेस करने पड़ते थे. इसमें चादरें होती थी, डबल बेड चादरें. तो या हालत पतली हो जाती है, लेकिन मजा है. कपड़े प्रेस करने का डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है. झाड़ू पोछा थोड़ा कम हो गया है, बर्तन मांज लेता हूँ बीच बीच में. और फिल्मों का जो एक्साइटमेंट था वो असल में चेंज होता रहता है. कभी फिल्मों से किताबों की ओर चले जाते हैं, कभी किताबों से फिल्मों की ओर चले जाते हैं. और या सो बहुत मतलब इन द सेंस मुझे अकेले रहना वैसे भी पसंद है. तो अकेले मतलब मैं जब बैचलर हुआ करता था तो मैं महीनों कमरे से बाहर नहीं निकलता था. मुझे पढ़ने का शौक था, तो पढ़ने में समय बीत जाता था. तो लॉकडाउन मेरे ऊपर बहुत गड़बड़ असर नहीं किया उसने. लॉकडाउन ने बहुत मजा आया मुझे. फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिला. मेरा 11 साल का बेटा है, ही इज इन 6th कबीर. सो उनके साथ समय बिताने को मौका मिला. उनको पता नहीं इतना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. वो बोल रहे हैं यार ये हमेशा ही पीछे पड़े रहते हैं. तो या तो लेकिन काफी कुछ मजेदार समय बीता है. बीच बीच में डिप्रेशन भी हुआ बिकॉज आप दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो. लेकिन घर में बहुत एक्साइटिंग चीजें बन रही खाने को, क्योंकि सबको समय काटना है. तो सब लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एक बार मैंने भी कोशिश की. मैं खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ. एक बार मैंने कोशिश की कि मैं जब जाहिर बैचलर था तो बहुत खाना बनाता था, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई. लेकिन मैंने एक दिन सोचा सबको इम्प्रेस कर दूंगा, और मैंने बनाने की कोशिश की. और इतना खराब बना, इतना गड़बड़ हो. 2 बार बनाने की कोशिश की, दोनों बार गड़बड़ हो गई. मैंने एक जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने जो है ना ऐड कर दिया, जो मुझे नहीं करना था. वो मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने उसको छोड़ कर रखा कि नहीं करूंगा ये, और वो एंड में वो डाला, उसने सब गड़बड़ कर दिया. सो या तो और लेकिन फैमिली बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सबने बोला बहुत अच्छा. पर उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल रहा था कि इनके गले से उतर नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती खा रहे हैं. तो या वेरी एक्साइटिंग. या तो सब फिल्म्स तो ऑनलाइन पर चली गई हैं, बट थिएटर बहुत हद तक परफॉर्मेंस या शोज नहीं हो पा रहे हैं. बट आपने और आपकी कंपनी ने डी फॉर ड्रामा ने बहुत सारे थिएटर्स कराए, इंटरव्यूज हुए हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई हैं.
तो आपका ऑनलाइन थिएटर पे क्या व्यूज है? ठीक है, थिएटर की तो असली स्पेस तो लाइव ऑडियंस है, तो वो तो नहीं बदल सकती है, और उसका वो फॉर्म अगर बदल जाएगा तो फिर थिएटर का मतलब नहीं रह जाता है, मतलब वो फॉर्म ही खत्म हो जाता है। तो असल में जो किस्सा गोई है, जो हम अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ के बात करेंगे तो वो जो कम्युनिकेशन होगा उसका मतलब कुछ और होगा, है ना। तो थिएटर के साथ भी वही है, थिएटर जो है ना लाइव किस्सा गोई है, एक दूसरे को किस्सा सुनाना। वो जब हम एक दूसरे के सामने रहते हैं, जब लाइव ऑडियंस के सामने रहते हैं, उसका मजा और होता है। तो वो तो जरूर हम मिस कर रहे हैं, वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, चूंकि सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और परफॉर्मर्स घर पे बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किल है जो बैक स्टेज वाले लोग हैं वो घर पे बैठे हैं, लाइट डिजाइनर्स घर पे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने उनको एंगेज करने के लिए, और ये मेरा इनिशिएटिव नहीं था, ये मेरे ग्रुप के यंगस्टर्स का इनिशिएटिव था, क्योंकि वही कुछ नया सोच सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी को लेके मुझे कोई समझ नहीं है, अभी अगर मैं यहाँ पे अटक जाऊंगा तो मुझे अपने बेटे को बुलाना पड़ेगा, 11 साल के बेटे को, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसी तरह से ये मेरे ग्रुप के जो यंगस्टर्स हैं, वरा हैं, इन लोगों का इनिशिएटिव था जो उन्होंने किया, और फिर उन्होंने मुझे बाद में जोड़ा। इन्होंने बोला कि अब आप आइए, देखिए हम ये कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। एंड मतलब मुझे एक लेवल पे बहुत एक्साइटिंग लगा, जो मतलब इस फॉर्म में हम लोग इंटरव्यूज कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट दूसरे ग्रुप्स के साथ एक इंटरैक्शन हो सकता है थिएटर को लेकर के, जो हम नॉर्मली आजकल आदत चली गई है। जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया था तो आपस में ग्रुप्स का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा था। जैसे एक शहर में अगर 3 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, 5 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे का काम देखते थे और उस पर डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी। आजकल वो थोड़ा कम हो गया है। तो इस लॉकडाउन के बहाने ये हुआ कि लोगों ने एक दूसरे के काम को फॉलो करना शुरू किया, एक दूसरे के सेशंस में जा करके उस बहस का हिस्सा बने, उस चर्चा का हिस्सा बने, डिबेट्स का हिस्सा बने, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जहां तक रीडिंग्स का सवाल है, प्ले रीडिंग्स जो हो रही थी, जो उसको लेकर मैं बहुत मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं दिखा। प्ले रीडिंग्स असल में इन हाउस प्ले रीडिंग्स होनी चाहिए, ग्रुप के लिए होनी चाहिए, ऑडियंस के लिए नहीं हो सकती है। बिकॉज प्ले सुनना, लाइव सुनना अलग होता है, लेकिन इसमें सुनना, उसमें बहुत अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर मैं कोई प्ले पढ़ रहा हूँ और हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम सब बैठे हुए प्ले पढ़ रहे हैं और कोई सुन रहा है और उसने चाय चढ़ा रखी है और चाय उबल रही है और अचानक वो चाय लेने गया और इस बीच में जो 4 डायलॉग चले गए, तो वो प्ले का कनेक्शन खत्म हो जाता है। जबकि टेलीविजन के साथ या सिनेमा के साथ प्रोबेबली ऐसा घर में आप जब बैठ के देखते हैं तो आप पॉज कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा से आप रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन जो प्ले रीडिंग है, वो जब लाइव सेशन चल रहा होता है उसमें वो सब संभावना नहीं रहती, पॉसिबिलिटी नहीं रहती, और अगर आप 2 लाइन भी मिस कर गए तो फिर उसका मजा चला जाता है। तो या मुझे लगता है कि और कुछ हमने परफॉर्मेंसेस भी की। हम लोगों ने घर में एक राजा नंग धड़ंगा एक कहानी है, बच्चों की कहानी है। सो आकर्ष हमारे मित्र हैं, डायरेक्टर हैं आकर्ष खुराना, एके वीरियस उनका ग्रुप है, तो वो चाहते थे कि हम उनके लिए कुछ परफॉर्म करें। सो हमने कहा यार चलो एक कहानी, उन्होंने कहा कि एक कहानी पढ़ दो, तो हमने सोचा चलो एक ये वाली कहानी पढ़ देते हैं। लेकिन फिर एज ए फैमिली हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम परफॉर्म करते हैं, कुछ करते हैं। तो माय वाइफ इज एन एक्टर आयशा रजा, माय मदर इन लॉ इज एन एक्टर सलीमा रजा, मैं एक्टर हूँ। हम 3 लोग थे और हम इकबाल भाई और बज्जो हैं, उनको भी हमने शामिल कर लिया। एंड कबीर वाज डूइंग बैक स्टेज, सो कबीर डिडंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो ही इज वेरी शाय। So we performed that story. Probably YouTube पे होगी, राजानंद धड़ंगा के वीडियोस में। If you guys get time, please visit it. मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग बन निकली है। हालांकि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं, मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम टू नर्वस। बिकॉज थिएटर में जब आप जाते हो तो नर्वस होते हो, लेकिन वो आपकी स्पेस होती है। लेकिन दिस इज वन थिंग वेयर आई एम वेरी नर्वस। अभी भी मैं नर्वस हूँ, इसीलिए नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। Sorry, I'll stop now. You ask the next question. सर, आपने अपने करियर में इतने सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं और आपका एक नाम बन चुका है, तो इस सब की शुरुआत कैसे हुई? आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए थिएटर से? थिएटर से असल में मतलब
मतलब थिएटर में मेरी मतलब परफॉर्मेंस में मेरी जो दिलचस्पी है वो मेरे ग्रैंडफादर को देख करके और मेरे फादर को देख के। मेरे फादर रामलीला करते थे, हालांकि रामलीला करते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन आर्मी में जब वो थे तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। तो एक प्ले कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान की आंखें, तो आई हैड सीन हिम ऑन स्टेज एंड मैं उनको हमेशा प्रवचन देते हुए देखता था। वो आर्मी में थे, एजुकेशन कोर में थे, तो वो कहीं भी मंदिर में चले जाते थे, मंदिर में वो पुजारी का काम भी कर देते थे, वो फिर गुरुद्वारे में चले जाते थे, वहां भी प्रवचन दे देते थे। तो मुझे लगता था कि इनको हिंदुइज्म के बारे में भी मालूम है, सिखिज्म के बारे में मालूम है, इनको सारे रिलीजन्स के बारे में कैसे मालूम है, जहां भी। पर बेसिकली वो परफॉर्मर थे। तो जब वो प्रवचन देते थे तो मैं मेस्मराइज्ड होकर उनको सुनता था। मुझे लगता था माय गॉड, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं। और ये मेरे फादर के बारे में। नॉर्मली बच्चों को एक उम्र के बाद अपने माता पिता की हरकतों से एम्बैरसमेंट होने लगती है। वो जैसे मेरा बेटा मुझे भगाता रहता है, बोलता प्लीज आप जाइए यहाँ से। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे ग्रैंडफादर पूजा करते थे तो रामचरितमानस पढ़ते थे। तो जब वो पढ़ते थे, वो रामायण पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते वो रोने लगते थे। एंड आई वाज ऑलवेज इंट्रीग्ड कि क्या है इसमें जो ये रोने लगते हैं। और मतलब पढ़ भी रहे हैं और आंसू भी गिर रहे हैं और वो रो भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो मैं सोचता था ये क्या है। उस समय मुझे रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ जो वर्ड्स की जो ताकत है, जो रिटन टेक्स्ट की जो ताकत है, जो पावर है, रिलेशनशिप की जो पावर, जो रिटन टेक्स्ट में ड्रामा की जो पावर है, वो कितनी खूबसूरत होती है। बट एनीवे उस समय तक तो मैं अवेयर नहीं था, उस समय तो मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं जब मिलिट्री स्कूल में पढ़ने गया बेलगाम में बोर्डिंग में, तो वहां पे हमारे यहाँ उस समय पढ़ाई होती थी, लेकिन पढ़ाई भी होती थी। हमारे स्पोर्ट्स बहुत होता था, को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, और साथ में पढ़ाई भी हम लोग करते थे। तो वहां पे हर साल इंटर हाउस ड्रामेटिक कंपटीशन होता था अंग्रेजी और हिंदी नाटकों का। को करिकुलर एक्टिविटीज में डिबेट्स होती थी, एक्सटेम्पर होता था, देन पोएट्री कंपटीशन होता था। देन हम लोगों के हर हफ्ते 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में हर जो क्लास होती थी उसका स्किट होता था असेंबली सेशन में। So there was so much cultural activity happening there in the school. It used to happen there कि वो उसने एक मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा किया। और आप जब से स्कूल जाते हो तो आपको हमेशा, हमारे स्कूल में ये था कि जब तक आप स्कूल से पास आउट होते थे, हर आदमी को एक न एक बार परफॉर्म करने का मौका मिलता था। तो 6th में मैं पंडित बना था, देन 7th में मैं रानी बना था, क्वीन बना था, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल बॉयज स्कूल था, तो लड़कियों का रोल हम ही करते थे। तो सो मैं रानी बना था। तो वहां से बेसिकली थिएटर में इंटरेस्ट, एक्टिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ। और हमारे टीचर्स जो थे बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स थे और बहुत इंकरेजिंग थे। तो वो उन लोगों ने मुझे बहुत इंकरेज किया ड्रामा करने के लिए, और हम लोग बहुत पैशनेट थे। बिकॉज ड्रामेटिक ट्रॉफी, हमारे यहाँ स्कूल में 3 ट्रॉफीज होती थी बहुत प्रेस्टिजियस। एक तो एकेडमिक ट्रॉफी होती थी चैंपियन हाउस बनने के लिए, एकेडमिक ट्रॉफी, बॉक्सिंग जो कि, और एथलेटिक्स, और उसके साथ ड्रामेटिक्स। ये 4 ट्रॉफीज होती थी जिनके बहुत जबरदस्त पॉइंट्स होते थे। तो वो मतलब वो हमको जीतनी होती थी, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत करते थे। तो तो मेरे ख्याल से स्कूल से मुझे उसमें दिलचस्पी पैदा हुई, एक्टिंग में, थिएटर में स्पेशली। सर आप और स्कूल के बाद की जर्नी के बारे में बता सकते हैं हमें? स्कूल के बाद मैं भोपाल आया। भोपाल में मेरे पिताजी उस समय आर्मी उन्होंने छोड़ी थी ताजी मतलब आर्मी में थे और उस साल आर्मी छोड़ने वाले थे। तो मैं बोर्डिंग में पढ़ के आया, और उसके बाद मैं 1.5 महीने तक मैं कमरे में बंद रहा, बिकॉज वहां पे कोई मेरा दोस्त नहीं था, मेरे को जान पहचान वाला नहीं था। सो मैं एक कमरे में बंद रहता था, डिप्रेशन में चला गया था। हालांकि उस समय हमें डिप्रेशन का मतलब नहीं पता था, पर मैं आई वाज लाइक किसी से बात नहीं करता था। तो मेरे पिताजी को ये पता था कि मुझे थिएटर में इंटरेस्ट है। तो उसी दौरान भारत भवन है भोपाल में, कल्चर सेंटर, वहां पे एक वर्कशॉप लग रही थी थिएटर की। उस वर्कशॉप के लिए पिताजी ने मुझसे पूछा, मेरे डैडी ने, कि आप ज्वाइन करना चाहते हो? और पहली बार मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट उनको दिखाई दिया। वो मुझे वो फॉर्म लेके आए, और उसके लिए मैंने जाकर के इंटरव्यू दिया बाकायदा, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहां से असल में एक तरह के, मतलब जिसको कहते हैं कि सेमी प्रोफेशनल थिएटर की शुरुआत हुई, जहां मैं वहां पे अलकनंदन थे जिन्होंने पहली वर्कशॉप कंडक्ट की थी। वो मेरे पहले गुरु हैं, मतलब स्कूल के बाद। और फिर भोपाल में मैं
88 से या 87-88 से शुरुआत की थिएटर की, और 91 तक मैं भोपाल में था। 1991 तक भोपाल में थिएटर कर रहा था। उसी समय दिल्ली में भी किया, फिर दिल्ली ड्रामा स्कूल चला गया मैं 3 साल के लिए, NSD, और 3 साल NSD में था, और उसके बाद फिर मुंबई आ गया, बॉम्बे। सर, आप NSD के बारे में कुछ बता पाएंगे? जो आपके दिन थे, आपके रूममेट्स, और अब वो कहाँ आ गए, आप कहाँ आ गए? NSD मतलब NSD बहुत एक्साइटिंग था। NSD मतलब हमारे लिए किसी भी एक्टर के लिए वो मक्का है, एक्टिंग का, थिएटर का, लर्निंग का। बिकॉज आप वहाँ पे एक तो आप 3 साल के लिए उसी माहौल में रहते हैं। आप सुबह से रात तक सिर्फ एक्टिंग के ऊपर बात करते हैं, थिएटर के ऊपर बात करते हैं, और आप सुबह क्लास शुरू होती है 7 बजे से 7 या 8 बजे से क्लास शुरू होती है। वो फिर उसका टाइम, एंड का टाइम नहीं होता, बिकॉज वो 12-1 प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। एंड आप बहुत आपको खुशी भी होती है क्योंकि आप वही करने के लिए आए हो। एंड फर्स्ट ईयर में डॉर्मेटरीज होती हैं हमारा। अब तो चेंज हो गया, हॉस्टल चेंज हो गया, वकील ने हमारा हॉस्टल हुआ करता था। सो हमारे डॉर्मेटरीज थी, और सेकंड ईयर से थोड़ा सा 3 लोग या 2 लोग शेयर करते थे। फिर फाइनल ईयर में कई बार आप लकी हो तो आपको सिंगल कमरा भी मिल जाता था। एंड बहुत बदमाशियां होती थी, बहुत ही बदमाशी, मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब और क्रिएटिव बदमाशियां करती है। अब तो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं, पर मेरे जो बैचमेट्स हैं वो ज्यादातर मुंबई में हैं। आशुतोष राणा हैं, श्रीवर्धन त्रिवेदी हैं, मुकेश तिवारी हैं, सब मंझे हुए कलाकार, यशपाल शर्मा हैं, सत्यजीत शर्मा हैं, एंड प्रतिभा जगताप, नम्रता, ये लोग बॉम्बे में हैं, और कृष्णा के भट्ट, ज्ञान, तो पूरी लिस्ट है ये सब। और हम लोग जैसे स्कूल में होता है, हमेशा जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको कोई भी कुछ भी पढ़ाता है तो आप उसको चैलेंज करना चाहते हो। आपको हमेशा लगता है कि आपको टीचर से ज्यादा पता है। सो यू ऑलवेज, and as students we would also do that. We would also keep asking questions, sometimes very silly questions, sometimes just for the sake of asking. And वो हमें कुछ सालों बाद रियलाइज होता है कि कितने सिली सवाल थे, लेकिन सवाल तो पूछते रहने चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं उसके बारे में। अदरवाइज आप सवाल नहीं पूछे, इसका मतलब सोच नहीं रहे हैं। पर कई बार हम लोग बिना सब पूछे भी सवाल पूछते थे। मतलब मैंने एक बार अपने मेरे जो टीचर थे उनको मैंने बहुत तंग किया था। एक प्रोडक्शन वो कर रहे थे, 3 सिस्टर्स, तो वो एक तरह से डिजाइन कर रहे थे वो प्ले, एंड मुझे लगता था कि ये डिजाइन क्यों। ही वाज द डायरेक्टर, सो नेचुरली उनको मालूम था कैसे डिजाइन करना है, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं उनको सवाल पे सवाल पूछता जा रहा था। सो आफ्टर में भी, मतलब मेरे ख्याल से स्कूल से पास आउट होने के 20 साल बाद या 15 साल बाद मैं उनसे मिला मैसूर में। एंड मैंने उनसे सॉरी बोला। मैंने कहा सर मैंने बहुत तंग किया आपको स्कूल में, बिकॉज मैंने इतने सवाल पूछे थे, वो सब बेवकूफी भरे सवाल थे। बट कुछ सवाल इंटरेस्टिंग थे, कुछ सवाल एक्साइटिंग थे। बहुत अच्छे टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी थी। और अगर कोई भी आदमी अगर थिएटर लेना चाहता है एज ए प्रोफेशन, या एक्टिंग करना चाहता है थिएटर में, तो ये बिल्कुल मानना चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको सीरियसली इसको लेना है। अगर आप इसको ऐसे ले रहे हैं कि टाइम पास है तो फिर थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज एक्टिंग तो बहुत आसान है ना, सबसे बन जाती है, ऐसा हम सोचते हैं। बट अगर आप सीरियसली इसको लेना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। सो लाइक यू रियली नीड टू keep studying, keep looking for different characters और different, मतलब आपको बहुत रिसर्च करना पड़ता है अपने काम के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम कई बार बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर वो भी ठीक है, वो भी फन है, वो भी कोई वो नहीं। एनीवे, आपके सवाल से मैं कहीं और भटक गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो आजकल हम डिजिटल एज में रह रहे हैं और सारी मुलाकातें स्क्रीन के थ्रू हो रही हैं। तो आपके स्कूल में कभी ऐसा तो हुआ नहीं होगा, या उस जमाने की आप कुछ बताएंगे हमें? क्या आपका स्कूल में आपने क्या शरारत करी
या आपने क्या सीखा, ऐसा कुछ अलग? मिलिट्री स्कूल में हमने बहुत शरारतें की थी। मिलिट्री स्कूल में तो हमारी शरारतें, मतलब हम लोग बहुत पिटे हैं उस समय। अभी तो खैर वो जमाना नहीं रहा थैंकफुली, लेकिन हम लोग बोर्डिंग में थे। हम लोगों ने सॉरी बहुत 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 सारी मतलब एक तो ये था कि एक दिन हम लोग डिनर पे जा रहे थे, तो एक हमारा बैचमेट था, तो हम उस समय ज्वाइन नहीं किया था, तो आई थिंक आई वाज इन 6th, वी वर इन 6th। तो हम उसके फादर पुलिस में थे, तो उसके पास जो चीजें होती थी बोर्डिंग में, वो उसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी और हमारे पास वो चीजें नहीं होती, तो हमको बहुत चिढ़ मचती थी। हम बोलते थे यार इसके पास इतनी इंटरेस्टिंग चीजें कैसे होती हैं। तो एक दिन हम लोगों ने मजे लेने के लिए हमने उसका बिस्तर उठाया, रात को ही वाज स्लीपिंग, और शाम को सो गया था वो जल्दी। प्रेप होता हमारा 7 to 8 प्रेप होता था पढ़ने के लिए, तो प्रेप टाइम में सो गया। तो हमने उसका बिस्तर उठाया और बिस्तर उठा के ले जाके हमने हॉस्टल से बाहर ग्राउंड में, बिल्कुल बीच ग्राउंड पे रख दिया रात को, और उसका डिनर ब्रेक हो गया, तो हम लोग डिनर के लिए चले गए और हम खा रहे हैं एंड सडनली हमको, अब सोचो हम लोग 6th स्टैंडर्ड में हैं और हम जो अचानक हमको रियलाइज हुआ कि अगर वो डरा, अगर वो उसकी नींद खुली एंड वो अपने को पाएगा कि वो बिल्कुल एक अजनबी स्पेस में है, उसका हार्ट अटैक हो गया तो और हम लोग भागे, हम लोग डाइनिंग हॉल से भागे और भागते हुए सीधा ग्राउंड में गए, तो देखा वो अभी तक सो रहा था। तो हम लोगों ने उसको वापस ऐसे ही उठाया और वापस उसको रूम में ले जाके रख दिया। तो हमारा जो पूरा जो प्रैंक था खुद ही फेल हो गया, हम खुद ही डर गए। हम वापस, वो सुबह उठा, उसको मतलब नेचुरली हमने उसको उठाया डिनर के लिए, उसको पता भी नहीं चला। एंड सॉरी एक और किस्सा सुनाऊंगा, ये मेरी लाइफ का सबसे डराने वाला किस्सा था। सॉरी बच्चे डर न जाएं। सो हम लोग जब आई थिंक सो इन 8th, और 8th में हम लोग 4 लोग रहते थे एक रूम में, बड़े रूम्स होते थे, तो 4 लोग थे, शेयर करते थे। तो 3 मेरे बैचमेट्स थे, एक मेरा सीनियर था। मैं सो रहा था और अचानक रात को वो आया मेरे बिस्तर पे और मुझे उठाया और बोलता है मेरे बेड पे कोई है। मैंने बोला कौन है? तो बोला चुप, और उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया कि मुझे मारना चाहता है। और मैं 8th स्टैंडर्ड में था, सिट्टी पिट्टी को मैंने कहा क्या करूं। तो मैंने जो बाकी जो रूममेट्स थे, सैवियो था, लांबा था, मैंने उनको बुलाने की कोशिश की, मैंने कहा, उनको आवाज दिया, वो उठे नहीं। इसने मेरे मुंह पे हाथ रखा और हम दोनों एक ही बिस्तर पे चुपचाप लेट गए। अच्छा, मैं लेटा हुआ हूं और सडनली मैंने उसको देखा, तो वो लेट के मुझे देख रहा है। तो मैं और डर गया, मैंने कहा सो क्यों नहीं रहा है। और उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है कि मैंने उसको बोला कि मैं जाके जो हाउस कैप्टन है उनको बुला के लाता हूँ। उसने कहा नहीं, ये मुझे मार डालेगा। तो मैंने कहा ओह माय गॉड। अच्छा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में उसके बेड के नीचे कौन है। तो मैंने थोड़ी देर उसका हाथ थोड़ा ढीला हुआ और मैं झटका दे के भागा और वो मेरे पीछे भागा। मैंने कुंडी खोली और मैं रूम से बाहर जो डॉर्मेट्री थी उसका जो गलियारा था उसमें मैं तेजी से भाग रहा हूँ और रूम नंबर 1 पे पहुंचा। वहां पे हमारे हाउस कैप्टन थे, उनको मैं बुला रहा हूँ और मैं वहां से देख रहा हूँ एंड वो दरवाजे से मुझे झांक के देख रहा है। और रात को पता नहीं कितना टाइम हुआ है, मैं उनको उठाया, वो नहीं उठे। अब जो हाउस वाइस कैप्टन था वो हाउस के बिल्कुल दूसरे एंड पे थे और मुझे वहां जाना था, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मैं जंगल से, सड़क से होता हुआ, छुपते छुपाते रात को अकेले, एंड वो दरवाजे से मुझे देख रहा है, ढूंढ रहा है, दरवाजे पे खड़ा है और मैं अंधेरे में सड़क पे, रूम से बाहर सड़क, पैरेलल सड़क जा रही है। और जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने फिर दौड़ा, उस तरफ गया तो बरगे भैया थे जो हमारे सीनियर थे, हाउस वाइस कैप्टन थे। मैंने उनको बुलाया, एक बार में उठ गए। वो आए, बोले क्या हुआ। मैंने कहा वो इनको कुछ हो गया, मेरे रूममेट को। आए, वो मेरे बेड पे सो रहा था। बोला उठो। अच्छा, इसके पहले मैं उसको उसके बेड पे ले जाता, चीखता था यूं करके, हाँ मुझे मार देगा टाइप। सो वो आए, उन्होंने बोला क्या हुआ। बोला भैया मेरे बेड पे कोई है, एंड ही वाज अवेक। सो उन्होंने बोला कोई नहीं है, चल। उसको ले जाके सुला दिया। He went and slept. मैंने कहा अरे इट वाज सो सिंपल। अच्छा, मैं अपने बेड पे सोया एंड थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं कुंडी बंद करने की एक्टिंग की, दरवाजा बंद नहीं किया मैंने, मैं इतना डरा हुआ था। सडनली मैंने ऐसे देखा एंड वो अपने बेड पे लेटा हुआ मुझे देख रहा है यूं करके।
और मेरी हालत खराब, मैंने कहा ही इज गोइंग टू किल मी टुनाइट। वो इज लुक विदाउट ब्लिंकिंग, वो देख ही रहा है। तो रात हो गई, सो गए, सुबह उठा, मैंने उससे पूछा बॉस कल क्या हुआ था? बोला क्या हुआ था? So he was sleepwalking the whole night. He didn't remember a thing. He didn't remember a thing. My God, sleepwalk. उसके बाद मैं 3 रात सो नहीं पाया। मैं finally had to change my room. मुझे नींद ही नहीं आती थी। मतलब this was a whole act was almost for half an hour, 40 minutes, and पूरे time he was talking to me with open eyes, and we were doing this. He was running after me. ये सब किया। तो एनीवे ऐसे तो मैं किस्से सुनाऊंगा तो पूरे हमारी जो डिस्कशन है किस्सों में निकल जाएगा, बट या दिस वाज द मोस्ट स्कैरी थिंग इन माय लाइफ दैट हैपेंड टू मी। या सॉरी इट वाज अ लॉन्ग किस्सा, माफी चाहता हूं। नहीं सर, काफी अच्छा था। कोई बात नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। या तो सर आपका काफी बिजी स्केड्यूल है, आप काफी मूवीज करते हैं, थिएटर करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं। तो थिएटर में ऐसी क्या बात है जो आप वापस आते रहते हैं? आपको थिएटर के बारे में पसंद क्या है? हाँ, ये बहुत मुश्किल है डिफाइन करना थिएटर के बारे में क्या पसंद है मुझे। आई डोंट नो, आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू फिगर आउट। प्रॉब्ली इज द स्मेल ऑफ दैट ऑडी, जो स्टेज की जो लकड़ी की स्मेल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइव ऑडियंस बहुत अच्छी लगती है, लाइव इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है। देन द रिहर्सल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो थिएटर की रिहर्सल्स होती हैं वो बहुत एक्साइटिंग होती हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फेल विदाउट एनीबडी जजिंग मी। बिकॉज थिएटर रिहर्सल्स इतनी कमाल की होती हैं जहाँ पे you keep trying different things. In cinema you cannot try different things because you directly go for a shoot and आपको वहाँ पे अपना बेस्ट देना होता है, because एक बार वो रिकॉर्ड हो गया तो वो हमेशा के लिए हो गया। सो आप वहाँ फेल नहीं हो सकते हैं। थिएटर में जो आपकी 2 महीने की रिहर्सल, 1.5 महीने की रिहर्सल या 3 महीने की रिहर्सल, वॉट एवर द प्ले डिमांड्स, उस प्रोसेस में, उस रिहर्सल प्रोसेस में यू ट्राई सो मेनी थिंग्स एंड यू ट्राई विदाउट एनी इनहिबिशन। और आप इस डर से नहीं कि मेरा को एक्टर मुझ पर हंसेगा या मेरा डायरेक्टर मुझ पर हंसेगा और मैं गलती करूंगा तो क्या होगा। वो स्पेस ही होती है कि आप जितनी गलतियां कर सकें करें, जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, जितना आपके अंदर से जो कुछ भी है वो निकाल सकें। प्रॉब्ली दैट्स वन थिंग दैट एक्साइट्स मी, बिकॉज मैं बहुत शाई हूँ वैसे, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत सोशल आदमी नहीं हूँ अदर देन माई क्लोज फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। अभी तक पहले तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। मुझे तो बात करने में मुश्किल होती थी। पर जब मैं थिएटर स्पेस में होता हूँ, जब रिहर्सल स्पेस में होता हूँ, तो वहां पे मुझे असल में मेरे अंदर की सारी इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं और मुझे मजा आता है। मैं गड़बड़ करता हूँ, वहां पे डांट खाने भी मजा आता है, बिकॉज आप जो डांट खा रहे होते हैं वो असल में आपको कुछ बेहतर दे रहा होता है। एंड एंड उसमें अगर आप एक चीज अच्छी कर जाते हैं तो उसका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो परफॉर्मेंस से भी बड़ा अचीवमेंट होता है। सो आई कांट एक्सप्लेन दैट वेरी वेल, बट हाँ, मुझे थिएटर में इन सारी चीजों से मजा आता है। लाइव ऑडियंस का मजा आता है, वो थिएटर की जो स्मेल होती है जब आप ऑडिटोरियम में पहली बार घुसते हैं, अगर आप स्टेज पे जाइए तो देयर इज अ टिपिकल स्मेल, जो लकड़ी की स्मेल होती है, जो पर्दों की स्मेल होती है, वो सिर्फ वहीं की स्मेल होती है, उसी स्पेस की स्मेल होती है, वो और कहीं नहीं मिलती है। अभी जैसे लॉकडाउन में कुणाल सर का फोन आया था, कुणाल कपूर जो पृथ्वी थिएटर के जो मालिक हैं, उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इतने दिन से थिएटर नहीं आए, आइए एक बार कम से कम आप पृथ्वी थिएटर का फील ले लीजिए, बिकॉज लॉकडाउन में वी ऑल आर मिसिंग थिएटर। और मैं गया एंड इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट, बिकॉज देयर वाज नोबडी, इट्स एम्प्टी स्पेस एंड यू स्टैंडिंग देयर एंड आई मतलब तो आई लव थिएटर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, प्रॉब्ली मच मोर, बट मतलब अभी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहता हूँ इस चीज को लेकर के, बिकॉज वो फिर मुझे लगेगा मैं ही गलत बोल रहा हूँ। So sir, I know कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है तो उनके तो पहले तो थोड़े होश उड़ जाएंगे, बट इवेंचुअली दे विल बी लाइक ओके हाँ बेटा ठीक है कर लो। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक टेलिंग योर पेरेंट्स, और उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए थ्रू योर जर्नी? बहुत इम्पोर्टेंट था।
बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज मेरे मेरे फादर प्रॉब्ली बिकॉज ही हिमसेल्फ यूज्ड टू एंजॉय परफॉर्मेंसेस। मेरे फादर तो इतने कमाल के थे कि जब मुझे मुझे मेरा भारत भवन वर्कशॉप में हुआ, तो जब मैं वहां पे परफॉर्म कर रहा था, जो सिलेक्शन के लिए एक पीस दिया था उन्होंने परफॉर्म करने के लिए, जब मैं वो परफॉर्म कर रहा था तो अलकनंदन जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने पूछा कि आपके फादर ने आपको ये प्रिपेयर कराई इस पीस? एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा नहीं तो देन आई रियलाइज कि मेरे फादर आके यहाँ पे वो परफॉर्म करके भी जा चुके हैं। सो जब मैं मिलिट्री स्कूल में था तो मेरे पिताजी एक बार आए थे और उस समय हम पिकनिक जा रहे थे, स्कूल पिकनिक जा रहा था, तो मेरे पिताजी भी ज्वाइन किया एंड वहां पे भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो उनको कोई भी स्पेस मिलती थी वो परफॉर्म करने लग जाते थे। सो घर से ऑफ कोर्स देयर वाज एनकरेजमेंट बहुत, मतलब पिताजी ने कभी नहीं रोका, डैड ने कभी रोका नहीं मुझे। लेकिन उस समय ये चिंता उनको जरूर रहती थी कि यू शुड हैव अ जॉब, रेगुलर जॉब, जिसकी वजह से बाद में तुमको तकलीफ ना हो। लेकिन उन्होंने उसके लिए भी कभी प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुमको करना ही चाहिए, एक नौकरी करनी चाहिए। सो जब मैं थिएटर कर रहा था, जब मैं NSD गया, ही वाज हैप्पी। मतलब अगर उनको कुछ मन में डाउट था तो उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एनकरेजमेंट मुझे हमेशा से मिला। एंड मेरे ख्याल से अगर आपका कन्विक्शन है जो आप करना चाहते हो, और आज की जनरेशन में आप लोगों की जो जनरेशन है उसमें अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो और आपका कन्विक्शन है, पैशन है, तो आपके पेरेंट्स उस पर राजी हो जाएंगे करने के लिए। उसमें मुझे नहीं लगता आजकल कोई इतनी बड़ी दिक्कत आएगी कि नहीं अब हम नहीं, ये क्या कोई ऑफ कोर्स वो हर कई बार पेरेंट्स आते कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IIT जाइए, IIM जाइए, जो कि अच्छी चीजें हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हमारे प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, क्योंकि हमारे लिए जो जिसको कहते हैं कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, और अगर हम अवेयर नहीं है, मैं अगर डॉक्टर कर रहा हूँ और मैं डॉक्टर को लेकर मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में मुझे नहीं पता है, या मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर कर रहा हूँ, मैं शाहजहां कर रहा हूँ या औरंगजेब कर रहा हूँ या पृथ्वीराज चौहान कर रहा हूँ या मैं कोई साइंटिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में जानना पड़ेगा, उस बैकग्राउंड के बारे में मैं किस तरह का डॉक्टर हूँ, उस डॉक्टर की। तो ये सारी चीजों रिसर्च है वो तभी आएगी जब आपकी पढ़ने में दिलचस्पी हो। नहीं तो आप हर कैरेक्टर को एक तरह से करोगे, हर चीज को एक तरह से अप्रोच करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स, टुडेज एक्टर्स। दैट्स व्हाई मतलब थिएटर इतना रिच हो रहा है, बिकॉज मैंने अभी देखा है नई जनरेशन में लोग IIT करके, IIM करके वापस दे कमिंग बैक टू थिएटर, बिकॉज उनका पैशन थिएटर था, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस दे जॉइंड IIT, IIM, एंड वो क्लियर करने के बाद वो वापस आकर के थिएटर करना चाहते हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं अभिषेक मजूमदार उनमें से एक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। तो हमको तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। और आपका अगर सपना है, अगर आपका ड्रीम है, तो वो लेकिन उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट मतलब मुझे लगता है एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, और जो आपकी जो ये पैशन है ये तो वो करेगा ही पूरा, आपको आप फॉलो करेंगे उसको। बहुत ही सर, तो आपके हिसाब से लाइक डू यू थिंक एक्टर्स आर काइंड ऑफ बॉर्न और आर दे क्रिएटेड इन द सेंस कि लाइक वो पढ़ाई पढ़ लिखाई उन सब से बन जा सकते हैं, या फिर उनका शुरुआत से ही वो होता है टैलेंट? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब बहुत सारे लोग बहुत सालों से खोज रहे हैं, और हर आदमी के पास अपना जवाब होता है इसका। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आपकी एक्टिंग में दिलचस्पी है, पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी दिलचस्पी क्या है, आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, आप थिएटर क्यों करना चाहते हैं, आप इस प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपको उस बात की क्लैरिटी है तो फिर बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक्टिंग सीखना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्राफ्ट उसका आना जरूरी है। बिकॉज कई बार हम लोग कुछ लोग होते हैं जो इमोट बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोगों को रोना बहुत जल्दी आ जाता है, तो अगर उनको हम किसी एक सिचुएशन में डालते हैं और वो सैड सिचुएशन है तो उनके आंसू गिर जाते हैं, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, और हमको लगता है वो बहुत अच्छी एक्टिंग हो गई है। लेकिन वो आंसू एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, उसके बाद आंसू खत्म हो जाएंगे। सो आपको
आपके पास क्राफ्ट बहुत जरूरी होता है कि आप उसी परफॉर्मेंस को थिएटर में स्पेशली आपको एक परफॉर्मेंस को आपको 50 बार करना पड़ता, 100 बार 300 बार करना पड़ेगा। तो 300 बार आप वही सेम इमोशन आप इमोशनल मेमोरी में जा करके आप उसको याद करके आप खुश नहीं हो सकते, रो नहीं सकते। उसके लिए आपका क्राफ्ट स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मुझे इस जगह रोना है तो मुझे अपनी बॉडी के कौन से हिस्से को, अगर मुझे हंसना है, कुछ लोग हैं जिनको हंसने में दिक्कत आती है, जैसे कुछ एक्टर्स होंगे उनको आप स्टेज पे खड़ा कर दोगे तो वो हंस नहीं पाते हैं। तो और ये प्रोफेशनल एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे ग्रुप में यहाँ पे हम जब थिएटर करते थे तो हमारे एक एक्टर मित्र थे, उनको हम जब रिहर्सल कराते थे तो मैंने कहा इस मोमेंट पे आपको हंसना है, तो हो जाता था, आवाज ही नहीं निकलती थी। तो मैंने कहा आवाज निकाल के हंसिए, तो मैंने कहा आवाज कहाँ है? तो उसका फिर आपको टेक्निकल उनको समझाना पड़ता है कि आप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीथ को रोकिए। अब ये टेक्निकली कीजिए। ऐसा करें। तो ये जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक आप उसको पता नहीं होगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नेचुरल टैलेंट होता है, होगा, लेकिन नेचुरल टैलेंट आपको बहुत दूर नहीं लेके जाता है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी ले लीजिए तो जैसे सचिन तेंदुलकर साहब हैं या विराट कोहली हैं, आप कहेंगे कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड होने के बाद उनका जो वर्क एथिक आप अगर देखेंगे, उनको काम करते हुए देखेंगे, उनकी अगर मेहनत देखेंगे, तो वो जितने टैलेंटेड है उससे 100 गुना मेहनत वो करते हैं, बिकॉज उसको परफेक्ट करने के लिए उस चीज को। तो वही चीज एक्टिंग में भी है कि आपको अगर आप, और एक्टिंग ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज आप हर बार एक नया कैरेक्टर कर रहे हैं, और अगर आप अपने ये तैयारी नहीं करेंगे तो आप हर बार वही कैरेक्टर करते रहेंगे, आप हर बार वैसा ही करेंगे, और 2 बार करेंगे, तीसरी बार ऑडियंस बोर हो जाएगी, ऑडियंस बोलेगी अरे यार ये तो वैसा ही है। हम हमेशा कहते हैं ना, हम तो एक्टर्स को देख के कह देते हैं कि अरे इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। So it's very important for an actor to take training, but it's your personal choice. but मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को मांझने के लिए और अपने आप के अवेयरनेस के बारे में। अपने जैसे ड्रामा स्कूल में हमारी एक पूरी क्लास होती थी सेल्फ के बारे में, और उस समय हम हंसते थे, लेकिन उस सेल्फ की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि आप अपने आप को लेकर अवेयर हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, आप क्या सोचते हैं चीजों के बारे में। 90% हम लोग जो लोग हमको फीड करते हैं उस पे हम डिसाइड करते हैं अपना ओपिनियन, हम इस बारे में क्या। तो एक किताब होगी, आप उस किताब को पढ़ के आप अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं, आप अगर इसके बारे में आपकी क्या राय होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो या ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेचुरली गिफ्टेड होंगे लोग, होते ही हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता, पर जो आपका जो अगर आपको सीरियसली लेना है अपने काम को, थिएटर को और एक्टिंग को या जो भी है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग जरूरी है मेरे हिसाब से। सर आपने इतने सारे मूवीज किए हैं, आप काफी वर्सेटाइल एक्टर हैं, तो आपके कोई भी 2 रोल्स सिमिलर नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके कैरेक्टर की पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी में काफी अंतर होता है। तो आप एक रोल के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है? कमाल का सवाल पूछो यार आप लोग, सीरियसली, मतलब ऐसे सवाल तो प्रोफेशनल्स नहीं पूछते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है सीरियसली, मतलब वाओ, हमें भी बहुत मजा आ रहा है। जो तैयारी होती है, मैं अगर अपनी बात कहूं तो जो भी कैरेक्टर होता है उसकी तैयारी शुरू होती है उस स्क्रिप्ट से और उस टीम से, उस डायरेक्टर से। मतलब मेरा कोई एक प्रोसेस नहीं हो सकता है सभी कैरेक्टर्स के लिए। वो जो स्क्रिप्ट होती है, पहली बात तो स्क्रिप्ट किस दुनिया की है वो डिसाइड करती है, वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और वो जो टीम होती है, ये सारा कुछ मिल करके आपका प्रोसेस डिसाइड होता है। मतलब ये कलेक्टिव आर्ट है ना, थिएटर या सिनेमा, ये कलेक्टिव आर्ट है। यहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोसेस वैक्यूम में नहीं तैयार कर सकते हैं। वो प्रोसेस हमेशा आपके डायरेक्टर से सिंक में होना चाहिए, उस रोल के साथ सिंक में होना चाहिए, और जो को एक्टर्स आपके साथ हैं उनके साथ सिंक में होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं इस कैरेक्टर के लिए मैं
ये थोड़ा सा चिढ़ंकू टाइप का कैरेक्टर है, तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सबसे नाराज रहूंगा। और एक जो दूसरा एक्टर है उसका प्रोसेस है कि वो बहुत हंसी मजाक करता है, एक एक्टर है बहुत हंसी मजाक करता है, वो हर बात में टांग खींचता है। आपको एक मिडिल पार्ट ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आप वो आपसे कोई जोक मारेगा और आप उसको डांट नहीं सकते कि मैं अपने कैरेक्टर में हूं, तुम चुप रहो, तुम मुझसे बात मत करो, या या आप वो चिढ़ नहीं सकता। सो हर जो रोल होता है वो उसकी जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। जैसे जब मैं इल्हाम करता हूं, तो इल्हाम जो नाटक है उसमें मैं बहुत मुझे अपने साथ रहना पड़ता है शो से पहले। मुझे अपनी स्पेस चाहिए होती है, लेकिन मुझे इस बात को लेके भी अवेयर होना पड़ता है कि मेरे जो बाकी को एक्टर्स हैं, इफ दे आर कमिंग टू मी, इफ दे वांट टू टॉक टू मी अबाउट समथिंग, एंड इफ वो अगर वो जोक भी मार रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, तो मैं उस मजाक को एक्सेप्ट करूं अपने कैरेक्टर में रह करके, बजाय उनको मैं बोलूं कि नहीं आप हट जाइए। या अगर मान लीजिए मैं मेधा जुम्बिश कर रहा हूं और उसमें एक बच्चे की भूमिका कर रहा हूं, तो मुझे उसके लिए उस माहौल में जाना पड़ता है। तो हर जो कैरेक्टर होता है वो आपके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस लेकर के आता है। एक ही प्रोसेस जो है आपकी, वो हर कैरेक्टर में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। बट अगेन वो प्रोसेस अगर मैं समझाने जाऊंगा तो वो फिर अगेन बहुत लंबी प्रोसेस है, बिकॉज मैं एक कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया, फिर दूसरे को कैसे अप्रोच किया, तीसरे को कैसे अप्रोच किया। बट जो प्रोसेस है वो कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करती है, वो किस फॉर्म की स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर किस तरह से अप्रोच कर रहा है, आप उसको सुनते हैं, वो क्या चाह रहा है कैरेक्टर के साथ। लाइक जैसे मैंने एक फिल्म की थी रुस्तम, उसमें मैंने उस कैरेक्टर को एक तरह से सोचा था, रियलिस्टिकली सोचा था कि मैं इसको रियलिस्टिक करूंगा, बिकॉज वो रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्म थी। लेकिन जब मैं शूट पे गया तो मेरा डायरेक्टर उसको बिल्कुल दूसरे तरह से सोच रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये ओवर द टॉप हो, ये लार्जर देन लाइफ हो, वो कॉमेडिया डिलाटे की तरह भारी मूवमेंट्स के साथ हो। So I had to change my process for that because that was the director's vision. तो आपको अपना प्रोसेस उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। या सर, आप जब सीन्स करते हैं तब ज्यादा थोड़े इमोशंस के साथ, जब एक या दो या तीन एक साथ इमोशंस दिखाने पड़ते हैं, जैसे आपने राम सिंह चार्ली में एक सीन है कि आप फेस को पेंट करते हैं, और थप्पड़ में एक सीन है कि आप रत्ना पाठक जी से बात करते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो सर आप उस टाइम पे सोचते क्या है? क्योंकि हमें देख के तो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि आप एक सा मतलब पहले सैड दिखाया फिर हैप्पी, ऐसा भी नहीं है। तो सर आप क्या सोचते हैं उस टाइम पे? हाँ, इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने कि इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मतलब इट्स समटाइम्स आई विश कि मैं इसका सही जवाब दे पाऊँ, पर मैं बहुत इसको डिफिकल्ट ना बनाऊं, क्योंकि मुश्किल सवाल है। और मतलब मुझे असल में ज्यादा मजा आ रहा है, मैं ज्यादा भावुक हो रहा हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल बहुत सारे लोग मतलब नहीं पूछ पाते हैं हमारे साथ जो एनीवे। जो राम सिंह चार्ली वाला जो वो सीन है, उसके लिए हम लोगों ने असल में वो उस सीन की हमने तैयारी बहुत की थी। 1 साल पहले, मतलब 3 महीने पहले जाने से पहले हम उस पर्टिकुलर सीन के लिए, वो सीन लिखा नहीं गया था, लेकिन वो एक मोमेंट था जो हमको पिक्चर में चाहिए था। तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं था हम उसको कैसे करेंगे। तो वी वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस। हमने उसको बैलेक से ट्राई किया, हमने उसको डायलॉग से ट्राई किया, हमने उसको डांस से ट्राई किया, हमने साइलेंस से ट्राई किया, और हमने बहुत सारी चीजें की, और हम करके थक गए बिकॉज हमको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर जब हम शूट पे गए तो हम लोग कुछ क्लैरिटी नहीं थी हमारे मन में कि हमको क्या करना है, लेकिन वो पेंट रखा था वहां पे और मैंने उसको देखा और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। तो देयर आर समटाइम्स बिकॉज यू हैव वर्क सो मच ऑन द कैरेक्टर, उसकी बैकग्राउंड के ऊपर आपने इतना काम किया हुआ है, आप उस कैरेक्टर के साथ 3 महीने से जी रहे हैं, आपने उसके हर जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, उसको आपने एक्सप्लोर किया है। तो कई बार आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आप वहां जाते हैं एंड माय डायरेक्टर सेड कि आप यहाँ से जाएंगे
ये मोमेंट है, यहाँ पे ये टेबल है, पेंट रखा है, एंड ये बंदा आके आपसे एक डायलॉग पूछेगा, डायलॉग बोलेगा और आप जवाब देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, and I went there and he trusted me and it just happened. So sometimes magic happens, sometimes things happen, but they don't happen out of the blue. You have to work towards it. That's the most important thing. So वो हमने काम किया था, लेकिन exactly उस पे काम नहीं किया था, हमने उस emotion के possibilities पे काम किया था कि हम इस stage पे पहुंचेंगे कैसे। तो I can't explain that, it just happened there because we had worked a lot on that. फिर जहां तक थप्पड़ वाला जो सीन है, जो रत्ना जी के साथ जो सीन है, sometimes you have to let go, you have to let the other actor, जब आपके पास इतनी अच्छी अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, जब वो सीन कर रही हैं और आप उनको जेन्युइनली देख रहे हैं और आप उनको रिएक्ट कर रहे हैं, तो you will go through all the emotion, जैसे हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। तो it's not something जो हम रियल लाइफ में नहीं करते हैं। Sometimes we are going through the सेम इमोशन की हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। तो ये हम रियल लाइफ में महसूस करते हैं कि हमको चिढ़ भी हो रही है, लेकिन हंसी भी नहीं रुक रही है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे रियल लाइफ में होती है। तो वो जब वो डायलॉग बोल रही हैं और आप उनको सुन रहे हैं और इतना खूबसूरत बोल रही हैं, तो वो इमोशन आपके साथ बहता है, आपके साथ आ जाता है। आई डोंट नो, मैं जवाब नहीं दे पाया हूं से इसका, लेकिन या समटाइम्स हो जाती हैं चीजें, हो नहीं जाती हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए कहता हूं कि ओपननेस होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्टिंग में है, थिएटर में है, बिकॉज कलेक्टिव आर्ट में बार बार कह रहा हूं, आपको एक दूसरे के साथ काम करना होता है, आपको दूसरे को सुनना आना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको थिएटर में कहते हैं, वो आप सामने वाले एक्टर को सुनिए। और सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? सुनना। हमको लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते, हम सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। सो ज्यादातर शुरू में आप थिएटर कर रहे थे, तो मेरे डायरेक्टर कहते थे आप सुन नहीं रहे हो, सुनने की एक्टिंग कर रहे हो। मैंने कहा सुनने की क्या एक्टिंग, सुन तो रहा हूं। पर कई बार आप देखोगे जब दो एक्टर साथ में काम कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, तो एक एक्टर डायलॉग बोल रहा है और दूसरा एक्टर उसकी आंखों में देख के अपने डायलॉग बोल रहा है, मन में अगला डायलॉग नहीं, उसके डायलॉग रिपीट कर रहा है। सो अगर मान लीजिए मैं कुछ बोल रहा हूं, तो सामने वाला एक्टर क्योंकि वो उसके डायलॉग बोल रहा है कि इसके बाद मेरा डायलॉग है, यू नो। सो या, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव इन टू द अदर एक्टर्स। आप उसको सुने और चीजें बेसिकली मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ती है, तो चीजें पहुंच जाती हैं। आप लोग जब करना शुरू करेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ हो जाता है। सर वो वाला सीन तो मतलब राम सिंह चार्ली वाला सीन तो मेरे को अभी तक याद है। मैंने मतलब जब फिल्म आई थी उसकी 2-3 दिन बाद ही देखी थी, फिर भी अभी तक याद है। बहुत ज्यादा ही बढ़िया सीन था वो। हाँ, थैंक यू सर। आपने इंटरव्यूज में कहा है कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप अनुभव सिन्हा के साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं और अभिषेक मजूमदार के साथ थिएटर में, तो सर ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो काम कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे हैं कि नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आप एक स्क्रिप्ट कर रहे हैं और आप उससे डिसएग्री करते हैं एज एन एक्टर, तो आपके अंदर उसको काम को लेके एक रेजिस्टेंस होगा और वो आपके काम में दिखाई देगा। आप अगर जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आपको पसंद ही नहीं करता है, तो वो आपके काम में नजर आएगा। आप जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं करता है, तो भी काम में नजर आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, एक जुगलबंदी होती है, वो जुगलबंदी, वो कनेक्शन बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को समझें और उसके बाद उस पर डिबेट हो। समझने का मतलब, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात से राजी हो, हर बात से एग्री करें एक दूसरे की। हर बात से एग्री करना भी खतरनाक होता है, बिकॉज अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा हाँ 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 मैं करता गया, तो फिर मेरी अपनी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। आप अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ आप
उस एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं जहां पे आप एक मोटे तौर पर आप राजी हैं कि ये जो चीजें हैं ये हम एक साथ कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट हम एक साथ कर रहे हैं, इस स्क्रिप्ट पे हम राजी हैं, इसकी बेसिक जो फिलॉसफी है उससे हम सहमत हैं। अब अप्रोच को लेकर के हम लोगों में बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द वर्क एक्साइटिंग। यू नो, अगर मान लीजिए अगर हम हर चीज पे राजी हो जाएंगे तो फिर वो बोरिंग काम हो जाता है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज आप अपना कुछ दे ही नहीं रहे, आप वही कर रहे हैं जो डायरेक्टर आपको कह रहा है। समटाइम्स वो भी एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार डायरेक्टर आता है और वो बोलता है आप ऐसा ही कीजिए, और आप वैसा ही करते हैं, और वो जब वैसा करते हैं तो एक्टर एक नई चीज लेकर के आता है। एक्टर के लिए कोई भी प्रोसेस गलत नहीं होती है, पर डायरेक्टर के साथ जो जुगलबंदी होती है, डायरेक्टर आपको अगर रिस्पेक्ट करता है, आपके काम की रिस्पेक्ट करता है, और आप उसके काम की रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके सोच की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, और वहां पे आकर के आप गुत्थम गुत्था होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और फिर उसमें से नई चीज निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं जब अभिषेक जी के साथ काम कर रहा होता हूं तो वो हर चीज से राजी हो जाते हैं। वो कई बार मुझे टोकते हैं, कई बार मुझे एक ही चीज को, एक इम्प्रोवाइजेशन मुझे अभी भी याद है, कॉमेडी में हम लोग कर रहे थे, और वो इम्प्रोवाइजेशन मेरे ख्याल से 3 घंटे चली थी। अकेला मैं था और स्टेज पे था, और वो नॉन स्टॉप चलती रही है। कई बार डायरेक्टर आपसे राजी नहीं होता है तो आपको कराता जाता है, लेकिन आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसकी इतनी इज्जत करते हैं, बिकॉज आप वो जिस तरह से चीजों के बारे में सोच रहा है आप उससे अग्री करते हैं, तभी आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके और डायरेक्टर के बीच में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, एक बेसिक रिस्पेक्ट हो एक दूसरे को लेकर के। और जब आप इस तरह का काम करते हैं, स्पेशली थिएटर में जब आप काम करते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो एक तरह से सोचते हों लाइफ को लेकर के, जीवन को लेकर के, या हो सकता है डिफरेंट तरीके से भी सोचते हों, पर इतने ओपन हो कि हम एक दूसरे के व्यूज को लेकर के हम एक चर्चा कर सकें, एक डिबेट कर सकें, बहस कर सकें। सो वो एक इंटरेस्टिंग जिसको कहते हैं कि चीज हो जाती है। जी। तो नहीं, सॉरी रोशन, पूछो। अरे पूछो। ओके मैम। सो फिल्मों का काफी असर होता है लोगों पर काफी जिम्मेदारी भी होती है एज एन एक्टर। तो एक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द रोल्स दे आर प्लेइंग एंड द फिल्म्स दे एक्सेप्ट? क्या कभी आपने भी ऐसा कोई रोल रिजेक्ट करा है कि आपको लगा कि आप कन्विंस नहीं हुए कि ये ठीक नहीं है? यस। एक चीज से मैं पहले ये कह दूं कि मैं किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूं। किसी भी चीज को बैन करने के खिलाफ हूं। किसी भी तरह का लिटरेचर हो, किसी भी तरह का सिनेमा हो, किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, उसमें किसी भी तरह के रोक के खिलाफ हूं मैं। लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जरूर मैं कहूंगा कि आपकी एज एन आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आप जिम्मेदारी से काम करें। वो मैंने बहुत सारा कुछ काम ऐसे मैंने रिजेक्ट किए हैं जिनसे मैं सहमत नहीं था, जो मुझे लगता है कि अगर वो वल्गर हैं मेरे हिसाब से, अगर वो अच्छे नहीं हैं, और वो बेसिकली मेरा एक क्राइटेरिया ये होता है कि क्या मैं ये काम मैं खुद देख सकता हूँ करने के बाद कंफर्टेबली। अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और अगर मैं अपने कमरे में बैठ के फिल्म देख रहा हूँ और मेरा बच्चा आता है या मेरी मदर आती हैं या मेरे दोस्त आते हैं, तो मुझे वो चैनल्स बंद करने की अगर जरूरत नहीं महसूस होती है, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल, देन आई थिंक इट्स द राइट वर्क. If I feel embarrassed about the work, if I'm watching it alone and suddenly my kid comes or my wife comes or my mother-in-law comes or my mother comes or my brother comes and I have to switch off the TV because it's something I don't want them to see, then that's a wrong work to do. So that's my thing for how I approach my work. So yes, of course, एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, और मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को जो भी थिएटर लेता है या कोई भी आर्ट फॉर्म लेता है, या आर्टिस्ट नहीं, एज एक सिटीजन के रूप में भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेकर के. तो आप जो कुछ भी करें, आपको ये अवेयर होना पड़ता है कि मेरी इस हरकत से, कोई भी हरकत हम करते हैं, वेदर ऑन स्टेज करते हैं, पर्दे के सामने करते हैं या कैमरे के सामने करते हैं,
उससे हम किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं. Now again, this hurt has become a big issue these days. Everybody gets hurt very soon, so that's another topic. But I think it's as an artist, yes, of course, I am responsible. I try to be as responsible as possible. Sometimes you don't know. Sometimes you do something thinking that it's the right thing, and it turns out to be difficult, not the way you wanted it to be. So sometimes that also happens. But otherwise, yes, it is as an artist you have to be responsible. आप जो काम करते हैं उसको लेके एक जिम्मेदारी होनी चाहिए. सर, एक्टिंग करने के काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और ऑडियंस का रिएक्शन तो वैसे भी काफी इंस्टेंट होता है, एक रोल पसंद आया दूसरा नहीं. तो सर, इस सब के बीच में आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? हाँ, देखिए, चूंकि मैंने ये काम चुना है, मैंने ये प्रोफेशन चुना है, तो मुझे ये इस काम में इतना मजा आता है कि असल में ये मुझे रिलैक्स करता है. एक्टिंग मुझे रिलैक्स करती है, ये मुझे स्ट्रेस नहीं देता है. एक्टिंग मुझे स्ट्रेस नहीं देती है. और ये मैं जितना करता हूँ, ऑफ कोर्स इससे भी आप ओवर नहीं कर सकते. आपको ब्रेक की जरूरत पड़ती है, आपको रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है. आप एक साथ बहुत ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं. मतलब मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं एक साथ 3 काम हैंडल नहीं कर सकता. मुझे स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज हर कैरेक्टर में आपको एक तरह से इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आप 3 कैरेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्ट करके नहीं चल सकते हैं. आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. सो रिलैक्स करने के लिए आप पढ़ते हैं, आप कई बार टेलीविजन देखते हैं, आप बच्चे के साथ समय बिताते हैं. इस प्रोफेशन में जरूर एक चीज है कि मुझे फैमिली के साथ थोड़ा कम समय मिल पाता है. ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समय मिला है. सो ये मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है कई बार कि मुझे बच्चे के साथ समय नहीं मिल पा रहा है, अपने बेटे के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ समय नहीं मिल पा रहा है. वो थोड़ा सा मुझे लगता है. लेकिन फिर हम लोग समय निकालने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा मिल जाए. सो इनफैक्ट कई बार मुझे धमकी भी मिल चुकी है कि आप ये छोड़ दीजिए, बिकॉज इतना समय हम लोग, मैं एक समय ऐसा था कि 3 महीने 4 महीने का चंक था जब मैं भी बाहर था, शूट कर रहा था, और मेरी वाइफ भी शूट कर रही थी कुछ समय के लिए. सो कबीर वाज अलोन, लाइक ही वाज विद हिज नानी. सो उसने फोन करके हमको कह दिया कि आई थिंक आप दूसरों की तरह एक जॉब ले लीजिए, रेगुलर पेरेंट्स की तरह, एंड आप कम से कम हमारे साथ समय बिताइए, बिकॉज आप तो दिखते नहीं हैं हमें. एंड दैट वाज वेरी सैड, बिकॉज वी फेल्ट वेरी सैड, बिकॉज ऑफ कोर्स तो इस प्रोफेशन में ये भी दिक्कत आती है कई बार. तो और उसको आपको फिर जो समय मिलता है उसको आपको बहुत अच्छे से साथ में गुजारना पड़ता है. सो या, इट इज समटाइम्स इट इज difficult on the kid, on my son, but he's handling it quite well. ठीक है. Yeah. तो अभी हमारे स्पेक्टेटर से कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक एट द मोमेंट हम लोग अभी कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं कि हमने थोड़ा टाइम क्रॉस कर लिया है. हाँ, तो अभी हम थैंक यू बोलेंगे. सो थैंक यू सो मच. पहले तो मैं बोलूंगा आप लोगों को कि मैं अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, और मेरे पास बहुत सारे सवाल थे आप लोगों से पूछने के लिए. तो मैं नर्वस था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया. मैं सीरियसली मैं नर्वस हूँ, मैं बहुत नर्वस था. तो वो हम जब कभी अगली बार मुलाकात होगी तो पूछूंगा. लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज है मेरा. सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. इट्स लाइक मैंने समदीश के साथ एक इंटरव्यू दिया था, वो भी उसमें बहुत मजा आया था, और बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, मजा आया. लेकिन आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग सवाल हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है. अभी मैं इसके बाद डांस करूंगा. बाय द वे, अभी मैं जैसे रखूंगा, कैमरा ऑफ करूंगा, एंड आई डांस. Thank you so much. Sir. Seriously, thank you. Thank you. Our pleasure, sir. Yeah, sir, आपको जो questions थे आप पूछ सकते हैं अभी. नहीं, वो मैं अब नर्वस हो गया हूँ, मैं अभी नहीं पूछ पाऊंगा. आप वही सवाल मैं अब दोबारा पलट के पूछूंगा.
लेकिन लेकिन आज 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 आप लोगों का दिन था, आप लोगों ने, लेकिन इतने बहुत ही कमाल के सवाल पूछे यार, मजा आ गया। तो मुझे भी बहुत Thank you. मजा आया सर। So thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. I know for sure Drupad and I had a really great time. My favorite part was जब आपने अपनी शुरुआत के बारे में बताया कि आपने थिएटर क्यों शुरू करा, and then आप जो अपनी फैमिली और अपने हॉस्टल के किस्से सुना रहे थे, that was like very interesting, sir. So I would like to really thank you from the bottom of our heart, and I'm sorry हमने आपको nervous कर दिया. I would really wish कि आप पूछ लेते हमसे. I really don't want to know that. So thank you, and thank you. we wish you a lot of success for the future. And हमारे साथ हमारी principal है, Mrs. Shashi Banerjee. We would like to invite her to say a few words of thanks. So, Hi ma'am. सबसे पहले तो इतना मजा आया, मैं बैठ के सुन रही थी और आप लोग की बातचीत, और रोमशा और ध्रुपद को भी देखे जा रही थी कि उनको कितनी प्रेरणा मिल रही है और उन्हें कितना अच्छा लग रहा है। और ये बच्चे ऐसे, मैं बताऊं आपको, मैं इनको जानती हूँ, बहुत साल हो गए। तो रोमशा तो जब कुछ बोलती है तो ये पता चलता है कि वो दिल की बड़ी गहराई से ही निकला हुआ होगा, नहीं तो वो बोलेगी ही नहीं। और ध्रुपद की आंखों में ही दिख जाता है कि वो, उसको कैसा महसूस हो रहा है। और आप बैठ के उनके साथ इतने सहज भाव से और इतनी आत्मीयता से आपने इतना सुंदर हमें आज ये मौका दिया। हम उसके लिए, हमारी पूरी फैकल्टी, यहाँ मंजिमा और जितने भी हमारे बड़े धुरंधर ये थिएटर टीम है हमारी यहाँ पर, इतना मैं कहूंगी, धुरंधर इसलिए है कि हमें कुछ गलत करने नहीं देते। वो बड़े मजेदार लोग हैं। एक जो वैचारिक शक्ति एक स्कूल में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से एक थिएटर टीम की होती है, तो वो सब है। तो आपका बहुत तहे दिल से, अब ये तो आपने ऐसी ललक और प्यास लगा दी है कि अब आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। और मैं मंजिमा और पूरी फैकल्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बड़ा खूबसूरत समय था ये जो आपने गुजारा हमारे साथ, और हमें हमेशा याद रहेगा, यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो अच्छी चीज ये थी कि मुझे ये नहीं पता था कि आप सब सुन रहे हैं, वरना और नर्वस हो जाते हैं। नहीं मैं और नर्वस हो जाता। तो मैं तो ऐसे ही बच्चों ने नर्वस किया हुआ था, मैं तो और नर्वस हो जाता। और दूसरी चीज, मैं बिल्कुल एज पे हूँ, मतलब भावुक होने के बिल्कुल एज पे हूँ। और ये बहुत एम्बैरस करने वाली बात है अपने आप को कि कई बार जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। तो मेरी अभी स्थिति वो वाली है। तो मैं आपको मेरी हो चुकी है, मेरा वो हाल हो चुका है, तो मैंने बड़े अच्छे से स्निफल भी कर लिया। कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा तो मैं स्कूल को, बच्चों को दिल से धन्यवाद देता हूँ मुझे मौका देने के लिए। ये मेरे लिए मौका था, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप असल में ये जो सवाल है जो इन्होंने पूछे हैं, ये सवाल मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मीन करता हूँ कि ये जो सवाल इन बच्चों ने पूछे हैं, ये जो हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके पास ये सवाल नहीं है, उनके पास ये सोच नहीं है। सो मुझे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, बहुत अद्भुत दिख रहा है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। thank you, sir. so much. I Thank think you, sir. काफिला और उसके ऑर्गेनाइजर्स को, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया मैम। मैं एग्जिट कर सकूं? हाँ, नहीं बोलो आप सर। नहीं सॉरी, मुझे लगा मैं अरे नहीं सर। हाँ बोलो सर। मैं बस बोलना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके फादर बहुत अच्छे स्पीकर थे। मुझे भी सर आप अपने फादर जैसे ही लग रहे हो कि इतना मजा आया, काफी टाइम बीत गया, मुझे बहुत मजा आया सर सुन के। थैंक यू।